السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، ابھی تک ہم تمام لوگوں نے غسل کا طریقہ اور اس کے فرائض کو ملاحظہ کیا، اور مجھے امید ہے شاید اچھی طریقے سے تمام لوگوں نے یاد کر لیا ہوگا۔ آج کے اس ٹاپک پر آج کی جو گفتگو ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ مسجد کے آداب ہیں۔ مسجد میں کس انداز سے آنا چاہیے اور آنے کے بعد میں یہاں پر کیا کرنا چاہیے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے۔ سب سے پہلے جب انسان مسجد میں آنے کا ارادہ بنائے نماز پڑھنے کے لیے، تو بہتر اور سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے ہی وضو بنا کر مسجد کی طرف تشریف لے کر کے آئے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن اپنے گھر سے اچھی طریقے سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے، اور ایک درجہ اس کا بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر وضو خانے کا انتظام مسجدوں میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ کوئی انسان کبھی ایسا ہوا کہ اپنے گھر سے تشریف لے کر کے نہیں آیا، مسجد کے قریب ہوا، یا ایسے وقت میں فارغ ہوا کہ نماز کا وقت بہت قریب ہے، تو وہ مسجد میں آ کر کے وضو کرے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد میں شاید وضو کرنا یہ کوئی ثواب کا کام ہے۔ مسجد میں وضو کرنا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں، بلکہ گھر سے وضو کر کے آنا یہ ثواب کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ یہ ہوا۔ خیر، جو لوگ نہیں آ پاتے ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ گھر سے وضو بنا کر آئیں اور ہر قدم پہ وہ نیکی اور ثواب پائے۔ لیکن جب مسجد میں تشریف لے کر کے آئیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے مسجد میں جب ہم داخل ہوں تو ہمارا دایاں قدم مسجد کے اندر پہلے رکھا جائے، بایاں قدم نہیں رکھنا۔ اور یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی ذکر خیر کی محفلیں ہوں، جب ہم وہاں حاضر ہوں تو سب سے پہلے وہاں پر اپنا قدم اگر رکھنا ہے تو وہ کون سا رکھنا ہے؟ سیدھا قدم پہلے رکھنا ہے۔ جیسے محفل میلاد میں شرکت ہوئی، یا جہاں پر تلاوت ہو رہی کلام مجید کی، وہاں پر اگر ہم حاضر ہوئے، یا لوگوں کے درمیان میں ایسی مجلس منعقد ہے کہ لوگوں کے درمیان میں صلح کرائی جا رہی ہے، تو یہ تمام کیسی محفلیں ہیں؟ خیر کی محفلیں ہیں۔ یہاں جب بھی حاضر ہوں تو اپنا سیدھا قدم سب سے پہلے اس مجلس میں رکھیں۔ لیکن یہ اللہ کا گھر، یہ تو سب سے مقدس گھر ہے، اس میں جب حاضر ہوں تو سب سے پہلے اپنا سیدھا قدم مسجد کے اندر رکھیں، اور جب سیدھا قدم مسجد کے اندر رکھ دیں تو اس کے بعد سب سے پہلے دعا پڑھیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، جب مسجد میں داخل ہو تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب آپ سوچتے ہوں گے یہ تو بہت لمبی دعا بتا دی، اگر اتنی نہیں یاد کر سکتا ہے کوئی تو صرف اتنا کہہ لے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کشادہ کر دے اور کھول دے۔ سمجھ گئے نا؟ جب آپ دعا کرتے ہوئے مسجد میں آئیں گے تو جو بھی ذکر خیر کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ رب تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ تو ہوا مسجد میں جب ہم داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک میں یہ آیا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو انسان بہت زیادہ عجز و انکساری کے ساتھ میں، بردباری کے ساتھ میں مسجد میں تشریف لے کر کے آئے۔ سمجھ گئے؟ اکڑ کے اور سینہ تان کر کے نہیں۔ حکم یہاں تک یہ آیا ہے کہ مسجد میں دوڑنا نہیں چاہیے، یہاں تک کہ اگر کسی انسان کی رکعت بھی جا رہی ہو تو وہ یہ نہ کرے کہ دوڑ لگا کے ہم رکعت کو پا لیں۔ رکعت اگر جا رہی ہے تو جانے دیں، لیکن دوڑنے کی کوئی بھی
कोशिश ना करे, रकात बाद में मुकम्मल करे। अगर यही चाहता है कि हम रकात पहली रकात से शामिल हो जाएं तो इंसान को पहले आना चाहिए, लेकिन रकात पाने के लिए दौड़ना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। सूफिया इकराम यहाँ तक बयान फरमाते हैं कि आपने देखा होगा बिल्ली जब शिकार पर होती है तो अपने पंजों को कितनी आसानी के साथ रखती है। सूफिया फरमाते हैं कि मस्जिद में जब इंसान आए तो इसी अंदाज में आए कि दूसरे इंसान को उसके पैरों की आवाज भी नहीं आना चाहिए। लेकिन आज हमारा हाल ये होता है कि अगर कोई इंसान एक बल्ब जलाने के लिए कहे तो पूरी मस्जिद में जितने लोग बैठे होते सारे लोग ऐसे बोलने लगते हैं, ऐसा लग रहा कि मस्जिद को अभी उठा लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हदीस पाक में आया है कि दुनिया की बात करना मस्जिद में मुतलकन हराम, बगैर किसी कैद के कर ही नहीं सकते, चाहे कितनी भी जरूरी। हाँ, मस्जिद की मसलियत के या लोगों की मसलियत के फायदे के लिए अगर कोई चीज है तो वो धीरे से आसानी से आप पूछ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन तेज आवाज से बिल्कुल भी दुनिया की बात करना ये बिल्कुल मस्जिद के अंदर क्या है, हराम है। बात समझ में आई। और बहुत सारे लोग मस्जिद में आने के बाद मैंने ये गलती ये देखी है कि जब इंसान आता है तो बहुत सारे लोग रकात पाने के चक्कर में तकबीर तहरीमा तक नहीं कहते हैं और ये चाहते हैं कि हम फौरन इमाम के साथ में शरीक हो जाएं और हम रकात को पा लें। ये बहुत अहम मसला है। तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? वो तकबीर जिसके साथ में नमाज को शुरू किया जाता है, सबसे पहली तकबीर, उसको क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अल्लाह अकबर, और हाथ नहीं बांधे बल्कि डायरेक्ट रुकू में। वो ये चाहता है कि हमारी नमाज हो जाए, रकात मिल जाए। मैं कहता हूँ रकात तो बहुत दूर की बात है, उसकी नमाज भी मुकम्मल नहीं। इसलिए तकबीर तहरीमा कहना क्या है, फर्ज है। और जो इंसान जानबूझकर फर्ज छोड़ता है, भूले से भी अगर फर्ज छूट जाए तो उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। ये तो वाजिब का मसला है कि अगर इंसान भूल कर वाजिब छोड़ दे और नमाज के अंदर ही उसे याद आ जाए तो सजदा साहिब से पूरा कर सकता है, लेकिन अगर इंसान तकबीर तहरीमा छोड़ दे तो वो एक सजदा साहिब नहीं 50 भी कर ले तब भी नमाज नहीं हो सकती है। तो आप अगर एक रकात जा रही है तो जाने दें, बाकी रकातों में तो आप शरीक होने की कोशिश करें। अगर आप आते ऐसी सूरत में कि इमाम को आप कहाँ पाते हैं, रुकू में पाते हैं, तो आसानी आप सबसे पहले अल्लाह अकबर कहने के बाद में हाथ बांधे, दूसरी तकबीर कहने के बाद में आप रुकू में जाएं। समझ गए ना? मस्जिद में आए तो सबसे पहले दाहिना कदम रखें और क्या पढ़ें, अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाब रहमतिक। और मस्जिद में आए तो बहुत आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह का खौफ खाते हुए, ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए कि हम नमाज पढ़ने के लिए आ गए हैं। समझ गए ना? और अगर आए, अगर रकात जा रही हो तो जाने दें, तकबीर तहरीमा आप लाजमी तौर पर कहें। और जब आए मस्जिद में तो आने के बाद में फौरन आप एतकाफ की नियत कर लें। और वो क्या है, नवैतु सुन्नतल एतकाफ। इसका फायदा क्या होगा कि जितनी देर आप मस्जिद में तशरीफ रखेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपके नामे आमाल में उतनी देर तक नेकियों का इजाफा करता रहेगा। समझ गए ना? और जब आप मस्जिद से बाहर तशरीफ ले जाएं तो सबसे पहले अपना कौन सा कदम रखना? जब आए थे तब कौन सा रखा था? सीधा। और जब जाना है तो कौन सा रखना है? बायां हाथ। इसलिए आप याद रखें, जब अच्छी जगह पर हाजिर होना है तो सीधा कदम रखना, और जब अच्छी जगह से बुरी जगह जाना है तो बायां कदम बाहर रखना। और जब बुरी जगह पर कहीं जाएं तो सबसे पहले अपना उल्टा पैर रखें। और जब बाहर निकले, जैसे बैतुल खला में जाना है तो वहां पर सीधा कदम नहीं रखना है पहले, बल्कि उल्टा कदम रखना है। और जब बाहर निकलना है तो सीधा कदम रखना है। और जब यहाँ से तशरीफ लेकर के जाएं तो फिर ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका व रहमतिका। इसका भी वही तर्जुमा है, या अल्लाह मैं तेरे फजल और तेरी रहमत का तलबगार हूँ। ठीक है ना? ये दुआएं याद रखें और मस्जिद में आसानी से रहें। और आप ये कोशिश करें कि हम आए तो जितनी जरूरत की चीजें हैं वही करें, बाकी कोई चीज करने की कोशिश ना करें। बहुत सारे लोग आते हैं तो ये देखते हैं कि फला मस्जिद में फला चीज ऐसी पड़ी है तो वो ये फर्ज वाजिब ये समझते हैं कि जिसकी जिम्मेदारी है साफ करने की उसी को आवाज देते हैं। नहीं मुसलमानों, अगर गंदगी देखते हो, हदीस पाक में आया है कि मस्जिद में झाड़ू लगाया कर लो, इससे तकब्बुर और घमंड खत्म होता है। आप ये ना सोचें कि फला इंसान को ही आवाज दें, वो आके सफाई करे, ऐसा नहीं। जिसको मयसर आए वो मस्जिद की सफाई कर सकता है। कोई चीज अगर अच्छी तरीके से नहीं पड़ी है तो आप भी अपने हाथ से उसे दुरुस्त कर सकते हैं। ये ना समझें कि फला ही करेगा तभी ये काम होगा। समझ गए ना? अब अगर कोई चाहता है पूछना तो पूछ सकता है। कल के मसले में अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है? और अगर नहीं पूछना है परवरदिगार आलम की बात,
हाँ, बगैर झिझक। मैंने पहले भी नहीं कहा, न कोई ये समझे कि हम बहुत बड़े हैं, न कोई ये समझे कि हम बहुत छोटे हैं। जो चाहे वो पूछ सकता है। यहाँ पे अगर शर्माओगे, अभी अपने लोग हैं, बाहर अगर किसी गैर आदमी ने ये पूछ दिया, ये बताओ नमाज पढ़ने जाते हो, तुम्हारे मस्जिद के आदाब क्या है, तो बता नहीं पाओगे तो गैर कहेंगे क्या मस्जिद में जाते हो, इतना भी नहीं मालूम किस अंदाज में जाना चाहिए। समझ गए ना? बगैर किसी झिझक के कोई भी कभी भी कुछ पूछ सकता है। समझ गए ना? जो मालूम होगा इंशाल्लाह बताएंगे, नहीं मालूम होगा तो हम भी मालूम करने की कोशिश करेंगे। हाँ, दोबारा पूछ सकते हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।